more than 80% of the surveyed CXOs, almost around 36 CXOs, those we surveyed, has reported that their vehicles developments are getting delayed. If you look at the problem statement, the life cycle of the product is coming down. A vehicle which was having a life of more than around 18-20 years earlier for the product, now that life has reduced to maybe 2 years and even lesser in some cases. I think there is a concern not just in India but across the world with the tariff situation currently. It has also had side effects on our rupee, where we have depreciated to almost 89 now, which has another effect of our input costs that we import from all other countries and making everything more expensive. How Indian auto industry is plagued by the delays in terms of product development cycles. More than 80% of the surveyed CXOs, almost around 36 CXOs, those we surveyed, has reported that their vehicles developments are getting delayed. And if you look at the problem statement, the life cycle of the product is coming down. The technology is changing quite frequently. The features are changing. Software-defined vehicles are coming into place. So a vehicle which was having a life of more than around 18-20 years earlier for the product, now that life has reduced to maybe 2 years and even lesser in some cases. So if such is the change happening in the industry, but if your development cycles are long, then you are always playing a catch-up game. And the risk that we have is we may give way to the other countries to enter in India and sell their vehicles, which is happening. So the report which we have developed is telling to what extent this problem exists today, and we have given some solution elements in ways the OEM should change their way of working, in ways the tier ones should collaborate with the OEMs to build the vehicles faster. So that what are the solutions, how it can speed up the manufacturing of the products? So in new product development, the biggest challenge that happens is when you conceive a product and when you actually complete a product, there are changes that happen based on the feedback that you get from the market, that you get from the internal engineering teams, the collaborative stakeholders from manufacturing, suppliers and all. These changes have to be incorporated and the final product is getting ready. Typically, the expectation is the engineering changes should happen at the design stage. Almost 80% of them should be completed within design stage, and then maybe around 8% can happen even post-launch of the product. But the current situation is that significant number of engineering changes are made beyond the productionization of the vehicles, which means those changes which we are supposed to make earlier are still happening after launching of the product, which creates a burden on suppliers, OEM teams to keep on reworking on the same product again and again. The new products, the molds have to be made, the tools have to be remade, the designs have to be changed, the manufacturability is worked upon again and again. So this is a huge cost burden on OEMs as well as tier 1 suppliers, which inflates the costs, which delays the product, and that is required to be changed. Now, how we suggest to change is typically the perception is that if I have to, when the lead times are so much stretched, the perception is I should start early to finish the product early. If I start early, then I'll get enough time to do that. But that is the biggest problem. The more the work you put in the system, more people start working on different aspects simultaneously, and less is the pace at which one particular thing move faster. So the suggestion that we are having is to restrict the number of parallel projects that an OEM is doing. It's like a traffic jam. See, when you are in a traffic jam, everybody wants to take their vehicle forward,
at the cost of all others which are waiting in the system. But once a regulator comes into picture and suggests that okay, the policeman says one vehicle, and they start moving the things faster. Not only the first but last vehicle also starts moving faster through the traffic jam. Now this is the change that we are trying to bring in for the new product development. There has to be a regulator which decides that only so many projects will be worked on in parallel. Rest projects will wait. While they are waiting, we will improve on the concept level details of those, and when they enter the system, they move faster through the chain. The second thing that we are suggesting is when we are working on limited projects, we also should have a prioritization for bringing in the synchronization. So when you are working with multiple projects, किसी का एक एलिमेंट आ गया, किसी का दूसरा एलिमेंट आ गया, so there is always a challenge that you get different components of different projects, but they cannot make a full vehicle because it is partially completed all across. The moment you define a prioritization among those projects, then whenever a particular person is working, they have to always work on the highest priority. So when they are working with highest priority, this integration of all these elements happen much faster and the product development is happening faster. The third element that we are suggesting is typically the suppliers and the manufacturing engineering should be involved at the beginning of the concept stage so that all their inputs can be taken into account. Unfortunately, that is happening partially. It is not happening in full. Particularly build to print components, this is rarely happening because you do prototype and then you wait for the suppliers to be selected later on, and then they develop the tools, then they develop things, and then they come. So the third element is to get their collaboration in early stages of design. If you do that, then that creates synchronization and surprises which are currently found in the later part of the stages are avoided. These are the key changes that we have suggested. There are some other elements to it, but with this, the improvement are significant. In one of the case, within 2 years of our working, we could increase the output by 5 times from the same resources. Now 5 times is beyond noise. So those kind of outputs are possible. And so, at this time when OEMs are facing export tariff and shortage of rare earth magnets, what sense you are getting from OEMs, how they are dealing with these challenges when you talk to the CXOs of these OEMs? See, vis-a-vis tariffs are concerned and OEMs are concerned, our export of vehicles is very small portion. The bigger affected parties are the auto component suppliers. Our full vehicle exports are not so significant. Two-wheelers they are, but rest of the cases. So the OEMs and the body, the SIAM and ACMA body, they are working with government to ease the situation with US government currently. Internally, if we have to be resilient for such changes in future, we have to upgrade ourselves from a build to print kind of suppliers to proprietary product developers, wherein the alternatives are not so easy for the other countries to find. If we are able to do that, upgrade ourselves from just giving a component designed by somebody else to design our own components, technologies and supply to the external world, then this situation will not exist. So the learning for us going forward should be that we invest in R&D rather than secondary development, doing primary research and developing our own products which are very difficult for anybody else to copy. That will bring a change for the future. But currently it is government which has to step in and help the industry to take care of things. Government has also done, they have reduced GST. I think that is also going to help the industry as a whole because the consumption will increase. It is expected that as the volumes go up, the profits will also, the money flowing into the industry will increase, which will help take care of some impact of the tariffs which the industry was worried about. But still, government needs to discuss with the counterpart and find an amicable solution for it. How
Rosemeta is expanding and evolving its range of technology-based solutions to enhance road safety in the country. So, sir, we play a very active role, and I think our Honorable Minister Shri Nitin Gadkari ji also stated the same, that the need of the hour is for the OEMs and Tier 1s to invest in automated driving test tracks and automated testing stations for vehicle roadworthiness, as well as the recycling facilities for the vehicles. We have been at the forefront of all these technologies, and Delhi, we implement all the driving test tracks where it's in an automated fashion, all the driving license testing is done. We are also implementing other states such as Maharashtra, and also underway in other states of the country. With this, we are able to make sure the driver getting on road has a good ability to drive and will drive safely, which makes it safe for himself as well as others on the road. And with the roadworthiness test, we ensure that the vehicle is maintained better, maintained to the quality that it should be allowed on the road or not. Yesterday, Nitin Gadkari has said that India is highest in accident, 5 lakh accidents per year and 1.5 lakh deaths per year. And he was also talking about if they can bring immediately the culprit, 50,000 lives can be saved. So how Rosemeta is contributing in this mission? So, I think we all know it is a very long-term plan where the mindset of our people has to change. And here, I think telematics plays a large part. With emergency buttons, so that ensures passenger safety when they are in danger, when there is an accident, and I think a lot of states now have started implementation of the scheme as envisaged by the central ministry, and which is why we see a very large increase in telematics even for our own business. We are looking at almost 3 times growth this year in the telematics vertical, where we are the leaders in aftermarket as well as expanding our presence among the OEMs. Yesterday, Minister has said that he has requested Finance Minister for scrapping policy to give some rebate, GST rebate to the consumer who are buying new cars after this scrapping certificate by submitting a scrapping certificate. How do you see this move, this request? How important is this to promote the scrapping policy? So I think there have been some green shoots to the recycling industry, and it has taken some shape over the last 2 years. But it is government has exactly figured the right requirement, and it is the need of the industry, where the OEMs also would need to step in with the EPR and extended producer responsibilities, where they buy the recycled material and give enough incentives to really align the whole ecosystem and the end customer to really scrap his vehicle going forward. This US tariff and rare magnet earth issue, how industry is concerned when talk to OEMs or auto manufacturers? So I think there is a concern not just in India but across the world with the tariff situation currently. I think it has also had side effects on our rupee, where we have depreciated to almost 89 now, which has another effect of our input costs that we import from all other countries and making everything more expensive. But I think our government is working on the right track and will be able to figure it out very soon. 18% में आ गए हैं, किस तरह से फायदा पहुंचाएगी आपकी कंपनी? नहीं, इसमें मार्केट में काफ़ी अच्छा मैसेज गया है और रेट कट होने से डिस्पोजेबल इनकम काफ़ी बढ़ती है एक आम आदमी की और कंपनीज की अपना परचेज इंक्रीज करने के लिए, अपनी वॉल्यूम्स बढ़ाने के लिए और अपनी स्केल इंक्रीज करने के लिए। तो ये बहुत ही कारगर स्टेप है जो कि गवर्नमेंट ने लिया है और बहुत ही उचित समय लिया है जब फेस्टिवल सीजन है। तो ये एक स्टेप है सही डायरेक्शन में। तो सर, यूएस टैरिफ का किस तरह से इम्पैक्ट देखते हैं आप ऑटो इंडस्ट्री में इंडिया में? यूएस टैरिफ का जो कंपनियां एक्सपोर्ट कर रही थी उनके ऊपर इम्पैक्ट है, पर डेफिनेटली मैं देखता हूं कि जैसे हमारे फैसिलिटीज़ हैं यूएस में, तो हम लोग को इम्पैक्ट नहीं पड़ता है इसका, बिकॉज हमारी जितनी वहाँ की मार्केट की नीड्स हैं वो हम अपने यूएस और मेक्सिको के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से मीट करते हैं।
और सर आखिरी सवाल ऑर्डर को लेके है, किस तरह का ऑर्डर है, कितनी बड़ी चीज़ है ये इंडियन ऑटो इंडस्ट्री के लिए, जेबीएम के लिए तो है ही। नहीं तो 10,000 गाड़ियों से ऊपर का ऑर्डर बुक है हमारा, जिसको हम एग्जीक्यूट करते जा रहे हैं। और अभी जो हमारे को नया इन्वेस्टमेंट मिला है वर्ल्ड बैंक से, करीबन $100 मिलियन का, वर्ल्ड बैंक की ग्रुप कंपनी है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, उसका लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट एशिया का जेबीएम में हुआ है। तो वो एक काफ़ी सही स्टेप है और हमारी ऑर्डर बुक और हमारी एग्जीक्यूशन टाइमलाइंस और हमारी ग्रोथ को फ्यूल करेगा। जेबीएम का फुटप्रिंट बढ़ाने में ऑर्डर कितना महत्वपूर्ण रहेगा? नहीं, बहुत कारगर रहेगा, बिकॉज जो आईएफसी का इन्वेस्टमेंट है वो करीबन 1500 बसेस को डिप्लॉय करेगा अक्रॉस द कंट्री। Sir, tell me the key highlights of your presentation today. You showed in this ECMA convention. Yeah. No, I think the key highlight is, two things. One is there is a lot of opportunity. And the second thing is there is a lot of trade flow disruption that is happening in the world, which is also creating opportunity for us. I would say, for instance, if you take examples, we have ICE components which will still be very valid. We will still be a largely ICE component market in India, but also globally there will be a lot of players who will rely on other countries to have ICE components. And I think India can be a very large part of that play. Almost $20 to $30 billion of incremental revenue in the next 4 or 5 years can come through that. Second thing is there is also a large electrification wave that is happening, both domestically and globally. And again, there India can play a very large part on the component side. If you look at US and EU, it can be 30 to 60% electrified on the passenger car side by the year 2030. If you look at even India, we are growing at 35% CAGR on the back of two-wheelers, three-wheelers, small commercial vehicles. So I think there is a lot of opportunity both on the IC component side as being the last man standing play where we become the most efficient suppliers for the world, as well as on the electrification side. And like I said earlier, there will be $12 trillion of global trade flows that will shift. And auto component is one of the biggest sectors. 30% of the auto components will see a trade flow shift. And India will be a core part of that, which will also create that opportunity. Sir, how the rare earth shortage, rare earth magnet shortage is going to impact the industry? Yeah. No, it is a real challenge. It is also a challenge in the short term. There are a lot of initiatives that are on, which whether it's resolving temporarily with China, whether it is trying to figure out alternatives which can be done without rare earths. So, instead of using a PM-SM motor, can you use an electrically excited synchronous motor? So there are a lot of things that the government is trying, that the industry is trying. There is also recycling that can be done to resolve that. So I think there will be resolutions, which are in the pipe, which should happen. Sir, my last question is how US tariff and carbon taxes could impact our auto components export? Yeah. So look, obviously, if you look at our component export today, almost 50% of that export is to the US and EU. That said, what is happening is on the US side, there is a possibility if these tariffs are not resolved, that, the OEMs that are there in the US shift over time, because you cannot shift components immediately, but shift over time. Although our hope is that the tariffs will get resolved. On the EU side, if you look more at the carbon tax side of things, I think it will require us to become more and more compliant, in the absence of which it will erode profitability for the Indian component manufacturers. For example, if you look at green steel or cost of green steel, that could be 10 to 20% more expensive. Or using greener manufacturing methods like electric arc furnaces. So there will be a cost to that which could erode profitability unless we're able to either incorporate them or further reduce our cost.
Sir, my last question is how do you see the engagement between the Trump and our Prime Minister Modi recent days, where Trump has said that India is our good trade partner, Modi is my dear friend, and we are resuming our bilateral trade agreements negotiation. You know, I don't have any more information on this than anybody else. I don't have any inside information. My only hope is that, the two sides will be able to resolve and we will get to a better outcome than where we are today. किसी ने अपने प्रेजेंटेशन थी जिसको ऑटो इंडस्ट्री के लोगों ने बड़े ध्यान से बड़ी फोटो खींची जा रही थी किस तरह का ये रिपोर्ट है किस तरह से उनके लिए हेल्पफुल होगी। अब एक जो आपने बताई सर कि जो ग्लोबल चैलेंजेस है अभी करंटली चाहे वो यूएस टैरिफ हो चाहे वो रेयर अर्थ मैग्नेट हो उसमें इंडिया की अपॉर्चुनिटी भी है काफी, तो किस तरह की अपॉर्चुनिटी की बात आप कर रहे हैं? देखिए, मैं हमेशा से मानता हूं कि क्राइसिस एक अपॉर्चुनिटी होता है एंड हमारी इंडस्ट्री ने भी ये बहुत बार दिखाया है कि क्राइसिस को अपॉर्चुनिटी में कैसे कन्वर्ट करना है। अभी थोड़ा सा इश्यूज टैरिफ्स की वजह से है, थोड़ा सा सप्लाई चेन की वजह से है, और इसको अगर हम अपॉर्चुनिटी की तरह देखें तो दो तीन चीजें करने को हमारे को जरूरत पड़ेगी। पहले, जैसे शिवांशु बता रहे थे एट द स्टार्ट ऑफ द प्रेजेंटेशन, कि ये पूरा एक जो पेट्रोल और डीजल इंजन टेक्नोलॉजी है, राइट, ये ग्लोबली बहुत टाइम तक रहने वाला है और इंडिया के पास पूरा टेक्नोलॉजी है, पूरा सप्लाई चेन है, हमारे पास लेबर कॉस्ट एडवांटेज है, हमारे पास एनर्जी कॉस्ट एडवांटेज है, हमारे पास वो सारे सप्लायर्स हैं फोर्जिंग्स, कास्टिंग्स, मशीनिंग के, जो अभी अगर एकजुट हो जाएं तो दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री बन सकती है ये, राइट। अब ये है एक क्राइसिस को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करने का पॉइंट, राइट। हाउ डू वी कम टुगेदर एंड हाउ डू वी इसको जो हम पेट्रोल डीजल इंजन टेक्नोलॉजी को बोलते हैं उसको इंडिया से पूरी दुनिया में कैसे लेके जाएं। यूएस हो सकता है टैरिफ्स के कारण हमारे साथ कुछ टाइम के लिए प्रॉब्लम हो, बट यूरोप बहुत बड़ा मार्केट है। इंडिया के पास में इतनी कंट्रीज हैं जो इंडिया जैसी हैं, साउथ ईस्ट एशिया, अफ्रीका एक बहुत बड़ा मार्केट है, लैटिन अमेरिका एक बहुत बड़ा मार्केट है, राइट। चाइना डिफिकल्ट होगा क्योंकि वो इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ ज्यादा जा रहे हैं, बट अगर हम इन सबको कंबाइन करें तो जो इंडिया का मार्केट है उससे कहीं ज्यादा बड़ा मार्केट यहाँ पर है जहाँ पर हम अपनी कैपेबिलिटीज को लेकर जा सकते हैं। बट उसके लिए हमें एकजुट होना पड़ेगा, हमारे को क्वालिटी में बहुत आगे जाना पड़ेगा, हमारे को कॉस्ट में सबसे बेस्ट होना पड़ेगा। सो एक ये अपॉर्चुनिटी है। आपने रेयर अर्थ के बारे में बोला, रेयर अर्थ अब हर जगह इम्पैक्ट कर रहे हैं। अब हर गाड़ी में मोटर है, मोटर के लिए मैग्नेट चाहिए, मैग्नेट के लिए रेयर अर्थ चाहिए। कोई एक टैप बंद करेगा तो हमारा रेयर अर्थ बंद हो जाएगा, बिकॉज 2-3 जगह है जहां से रेयर अर्थ आता है। बट इस अपॉर्चुनिटी को, अगर इस क्राइसिस को हम अपॉर्चुनिटी की तरह देखें तो हमारे पास टैलेंट है कि हम नई मोटर्स डेवलप करें जहां पे रेयर अर्थ की जरूरत ही ना पड़े। हमारे पास ऐसी कैपेबिलिटी है, बहुत सारी स्टार्टअप कंपनीज हैं जो रिसाइकलिंग में हैं, उनको यूज करके हम दुनिया का लीस्ट कॉस्ट रिसाइकलिंग फॉर परमानेंट मैग्नेट्स का एक फ्रंट बना सकते हैं। बहुत सारी मैग्नेट्स विंड टर्बाइंस के डीकमिशनिंग से निकलेंगी, इतनी ज्यादा कि हम जितनी हमारी को ऑटोमोटिव में चाहिए उससे ज्यादा निकलेंगी, तो हमारे को रेयर अर्थ पे माइनिंग पे डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं होगी। तो ये सब एक चेस पजल की तरह खेलने का टाइम है, और अगर हम कर पाएंगे तो वी विल बी इन अ वेरी गुड स्पॉट, इज व्हाट आई वुड से। 2 व्हीलर में हम नंबर 2 हैं वर्ल्ड में, 4 व्हीलर में हम नंबर 4 हैं। कल मंत्री जी आए थे और प्रधानमंत्री की भी इच्छा यही है कि हम दुनिया के लीडिंग ऑटो मैन्युफैक्चरर बने नंबर 1। तो आपकी रिपोर्ट, जैसे आप अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं, अगर एक प्लेटफॉर्म पे सारे आ जाएं और हमें नई टेक्नोलॉजी ढूंढ लें जिस पर हम डिपेंडेंट हो, तो कब तक हम बन सकते हैं? ये एक सिर्फ इंडस्ट्री का पॉइंट नहीं है। देखिए, इसको थोड़ा सा पीछे देख, जीडीपी पे भी डिपेंड करता है। अगर मैं आपको कुछ आंकड़े दूं तो हम एक मेजर करते हैं कि गाड़ियों की पेनिट्रेशन क्या है एक कंट्री में। इंडिया में पर 1000 पीपल कुछ 30-35 गाड़ियां हैं, मतलब 100,000 लोगों के पीछे 35 गाड़ियां। आपको जान के बहुत हैरानी होगी कि यूएस का नंबर 900 से बड़ा है। सो 1000 पीपल के पीछे 900 से ज्यादा गाड़ियां हैं। चाइना में 200 है, हमारा पड़ोसी मुल्क है श्रीलंका, उसमें 60 है। तो अगर आप ये देखिए कि यार जीडीपी जैसे जैसे बढ़ेगा, अफोर्डेबिलिटी बढ़ती जाएगी हमारे लोगों में,
तो ये नंबर जैसे 30-35 से आगे 40, 50, 60, 100 की तरफ बढ़ेगा, ये इंडस्ट्री तो बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। अगर मैं एक और एग्जांपल दूं आपको, सन 2000 में इंडिया की गाड़ियों की सेल थी 1 मिलियन व्हीकल्स पर ईयर, चाइना की थी 0.9 मिलियन व्हीकल्स ईयर, हमसे छोटे थे वो। 2025 में वो, आई थिंक इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, 25 मिलियन गाड़ियां बेचते हैं साल में, और हम हैं अभी 4 के आसपास। तो अगर हम ये ट्रेजेक्ट्री पे रहेंगे तो 25 भी दूर नहीं है, तो वी कुड पोटेंशियली बी बिकम द लार्जेस्ट व्हीकल मार्केट इन द वर्ल्ड। बट उससे भी पहले अगर हम अपनी टेक्नोलॉजी को अपने शोर से बाहर लेकर जाएं, बाकी सारी मार्केट्स को हम इकट्ठा करें, वहां पे लीडरशिप लेने की कोशिश करें, तो हम उससे कहीं जल्दी बहुत बड़े बन जाएंगे। जो रेट कट हुआ है, किस तरह से इंडस्ट्री के लिए फायदेमंद है? ये बहुत फायदेमंद मूव है, हर इंडस्ट्री के लिए फायदेमंद मूव है। आप देखिए, ऑटो प्रोड्यूसर जो हैं उनकी रेट्स घट गई हैं, एंड वो घटने से कंज्यूमर को फायदा हुआ है। तो अल्टीमेटली ये रेट्स कंज्यूमर को पास ऑन हो जाएंगी, एंड चाहे वो कमर्शियल व्हीकल हो चाहे पैसेंजर व्हीकल हो, उसमें दाम घट जाएंगे, एंड दाम घटने से अल्टीमेटली कंज्यूमर इसको खुले दिल से और खरीद पाएगा। जो डिसीजन पोस्टपोन करता था कि हम साल भर बाद लेंगे, 2 साल बाद लेंगे, वेयर एंड टेयर के बाद भी चलाता था, उसको वो कंज्यूम कर पाएगा। आज कुछ सेक्टर में जहाँ पे जीएसटी का पास थ्रू इंडस्ट्री नहीं ले पाती थी, जो इंडिविजुअल कंज्यूमर है उसको तो खर्चा उसके लिए घट गया। तो अल्टीमेटली लॉन्ग रन में आई थिंक ग्रोथ होगी इंडस्ट्री की, और कंज्यूमर को फायदा होगा, इंडस्ट्री को फायदा होगा। एक्मा किस तरह से अपने मेंबर्स को बोल रही है कि इंश्योर कर रही है कि जो जीएसटी रेट कट हुआ है वो पास ऑन किया जाए एंड कंज्यूमर? देखिए, वो तो एक्मा को नहीं बोलना पड़ता है, ये तो एक दायित्व है इंडस्ट्री का, और ये तो अपने लोग ने पास्ट में भी देखा है, इंडस्ट्री की रैशनलाइजेशन हुई है, एंड सब जगह मोस्टली पास ऑन ही हुआ है, क्योंकि गवर्नमेंट का भी इंटेंशन वही है, और अगर एज इंडस्ट्री हम रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे तो वो जरा फेयर नहीं है। तो एक तरफ तो जीएसटी रेट कट से सबको सहूलियत हुई है, सबके जेब पे जो है बोझ कम हुआ है। दूसरी तरफ जो है सर, यूएस का जो टैरिफ लगा है उससे ओईएम्स हमारे सबसे ज्यादा प्रभावित है। किस तरह से आप इसको देख रहे हैं, क्या इम्पैक्ट होगा और किस तरह से ओईएम जो है इसको झेल रहे हैं या हटने की कोशिश कर रहे हैं? ओईएम से ज्यादा कंपोनेंट वालों को तकलीफ हुई है, बट ये तकलीफ एक कॉन्टेक्स्ट में देखिए कि $80 बिलियन की ऑटो कंपोनेंट इंडस्ट्री है, उसमें से 22 बिलियन एक्सपोर्ट होता है, यूएस 6.6 बिलियन जाता है। तो 6.6 बिलियन, एक तो 80 बिलियन के कॉन्टेक्स्ट में देखिए, है इतना बड़ा नहीं है, बट उसका इम्पैक्ट तो होता ही है। इस 6.6 बिलियन में भी 50% आइटम ऐसे हैं जो कि 25% टैरिफ पे हैं, और 50% करीब जो हैं कि वो 50% टैरिफ पे हैं। जो 25% टैरिफ पे हम लोग देखते हैं, तो आप इसको हरदम कंपेयर कीजिए कि हमारी नेबरिंग कंट्रीज या हमारी जो कंपीटिंग कंट्रीज जहां से और माल जा सकता है, उनकी टैरिफ्स क्या हैं। तो उनके केस में भी आप देखेंगे कि मेजॉरिटी ऑफ देम में टैरिफ्स हैं, वो करीब 25% के बराबर टैरिफ्स हैं। तो अगर उनका भी 25% है, हमारा भी 25% है, तो हम तो ये समझते हैं कि बराबर है, उसमें कोई अच्छाई या बुराई नहीं हुई है। 50% ऑफ 6.6 बिलियन का जो जाता है यूएस, वो 50% पे टैरिफ लगा है। तो इसलिए उसमें थोड़ा सा उसमें प्रेशर रहेगा, बट हमको गवर्नमेंट पे पूरा भरोसा है, वो अपने इंडस्ट्री के इंटरेस्ट में काम कर रही हैं, अपने देश के इंटरेस्ट में काम कर रही हैं, और वो सपोर्ट कर रही हैं। ये हमको लगता है कि एक टेम्पररी बम्प है, ये बम्प हम लोग ओवरकम कर पाएंगे। पैरेलली इंडस्ट्री तो और कम्पिटिटिव अपने आप को बना ही रही है, कॉस्ट स्ट्रक्चर को घटा रही है, अपनी एबिलिटी टू सप्लाई फ्रॉम अदर प्लेसेस बढ़ा रही है। कुछ हमारे मेंबर्स हैं जिनके प्लांट मेक्सिको में या यूरोप में या थाईलैंड में हैं, वो वहाँ से सप्लाई कर रहे हैं टेम्पररली। तो अल्टीमेटली आप चारों तरफ से देखो कि इंडियन इंडस्ट्री अल्टीमेटली और कम्पिटिटिव होगी। इसमें गवर्नमेंट कुछ स्कीमें निकाल रही है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम टू बी एबल टू हेल्प अपने लोगों को, कि चाहे कोई कैपिटल में इंटरवेंशन करके कि जो कैपेक्स है उसको कॉस्ट कैसे घटाए, अलग कुछ 2-3 चीजें।
तो इसलिए अल्टीमेटली ये टेम्पररी ब्लॉक होके भी मेरे हिसाब से हम लोग इसको ओवरकम कर पाएंगे। अभी जो इंडिया और यूएस की फिर से बातचीत शुरू हुई है, प्रेसिडेंट ट्रम्प ने बोला है कि इंडिया हमारा अच्छा ट्रेड पार्टनर है, मोदी जी हमारे अच्छे दोस्त हैं, और बातचीत का सिलसिला फिर से शुरू होने वाला है। जो बायलैटरल ट्रेड नेगोशिएशन रुक गया था फिर से शुरू होगा, और प्राइम मिनिस्टर ने भी उसको काफ़ी उन्होंने हाथ लिया है, उन्होंने भी थैंक यू बोला है ट्रम्प को इस बातचीत को दोबारा शुरू करने। किस तरह से ये डेवलपमेंट देखते हैं इंडस्ट्री किस तरह? बहुत पॉजिटिवली देखते हैं, और मेरे हिसाब से तो दोनों देश का फायदा है इसमें, और ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स हैं। जैसे मैंने कहा कि कभी कभी शॉर्ट टर्म में कुछ दो दोस्तों के बीच में कभी नाराजगी हो जाती है, फिर मेकअप हो जाता है। तो सवाल है रेयर अर्थ मैग्नेट को लेकर, किस तरह से इंडस्ट्री इम्पैक्टेड है और क्या रास्ता निकाल रही है? तो उसमें भी देखिए रेयर अर्थ से अपने लोग इम्पैक्टेड तो हैं, बट अल्टीमेटली जैसे अभी भी पहले बात हुई, 2-3 अलग अलग चीजें हैं जो कर रहे हैं। लाइट रेयर अर्थ मैग्नेट की बात भी कर रहे हैं, कुछ मैग्नेटलेस मोटर की टेक्नोलॉजीज भी आ रही हैं, कुछ रिसाइकलिंग ऑफ रेयर अर्थ की बात हो रही है। तो थोड़ा टाइम लगेगा इसमें। आप देखिए चाइना से अपनी थोड़ी सी रिलेशनशिप वापस इम्प्रूव हुई है। तो ये सब रिलेशनशिप्स अल्टीमेटली कभी कोई बीच में बाधाएं आती हैं, हम लोग उससे सीखते हैं और उसका नेक्स्ट स्टेप मिटिगेट करते हैं। तो ये भी झेलेंगे। इंडस्ट्री ने इतने सालों से अलग अलग चीजें झेली हैं, कोविड आया, प्रकार की चीजें हुई, बीच में सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज हुई, तो इंडस्ट्री ने ऑल्टरनेटिव निकाले, और इंडस्ट्री अपने आप को रेजिलिएंट बनाने की काफी कोशिश कर ली है और करती रहती है। तो ये भी शॉर्ट टर्म के जो चैलेंज आया, इसको भी अपने लोग कोई ना कोई तरीके से मिटिगेट करेंगे। मैम, आज के इस इवेंट से एक्मा के क्या मैसेज है इंडस्ट्री के लिए, सरकार के लिए, कंज्यूमर्स के लिए? जैसे कि आपने देखा आज की जो हमारी थीम है, नेविगेटिंग जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस एंड बिल्डिंग रेजिलियंस इन द सेक्टर। इसका मतलब वेरी सिंपल है, नो मैटर व्हाट इज हैपनिंग, जो भी हो रहा है बिटवीन कंट्रीज एक्सेट्रा, एज अ सेक्टर हमारे को कैसे आत्मनिर्भर बनना है और हमारे को कैसे रेजिलिएंट बनना है टू ओवरकम दीज चैलेंजेस, क्योंकि ये हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में क्या है? हमारे हाथ में हमारी टेक्नोलॉजी है, हमारा सेक्टर है, हमारे लोग हैं, हमारी ग्रोथ है। सो उस पर काम करना है सर। तो मैम, यूएस का जो टैरिफ है उससे हमारी इंडस्ट्री कितनी प्रभावित हुई? जैसे कि हमने पहले भी बोला कि हमारा एक्सपोजर यूएस को $6.5 बिलियन है, जिसमें से 3-3.5% जो है वो 25% टैरिफ पे है और बाकी जो है 50% पे है। हमें पूरा भरोसा है कि हमारी सरकार पूरी कोशिश कर रही है, और टाइम विल टेल, देखते हैं कैसे होता है। बट हम और भी कंट्रीज और भी मार्केट्स को हम एक्सप्लोर कर रहे हैं अभी। टैरिफ के बाद मैम अमेरिका का और इंडिया का थोड़ा क्लोजनेस बढ़ी है, और वापस नेगोशिएशन शुरू होने के बाद ट्रम्प ने भी कही है, मोदी जी ने भी अप्रिशिएट करा है, हो सकता है वो जल्दी दोनों लोग बात भी करें, मिले। तो किस तरह से इस डेवलपमेंट को देखती हैं एज ए इंडस्ट्री? देखो साहब, हमारी इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू कमेंट ऑन दैट। हमें अपनी सरकार पे पूरा भरोसा है कि वो जो भी करेंगे वो अच्छा ही होगा। एज अ सेक्टर हम अपने जो है प्लान बना रहे हैं कि हमारे को आगे कैसे बढ़ना है, किन मार्केट्स को देखना है, क्या प्रोडक्ट्स में जाना है, एक्सेट्रा। सो थोड़ा सा हमें सब्र करना चाहिए अभी। मैम, हमारा यूके के साथ एफटीए हुआ जी, पहले यूए के साथ हुआ, अब जी, इन दी लाइन जो है ईयू के साथ है, जिनकी टीम पूरी नेगोशिएशन के लिए बात आई हुई है जी, और हो सकता है बहुत जल्दी जो है हमें जी, खबरें मिले। आज जो है यूएस स्टेट कमिश्नर यहाँ आ भी रहे हैं, जी, यहाँ और पीयूष गोयल भी आ रहे हैं। किस तरह से आप इस एफटीओ को देखती हैं? इंडस्ट्री को कितनी ग्रोथ की उम्मीद है? सो एफटीएज हम एफटीएज को बहुत वेलकम करते हैं, बिकॉज हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, फॉर एक्सपोर्टिंग, फॉर एवरीथिंग। सो अब जितने एफटी होंगे अच्छी बात है, और सरकार पूरी कोशिश कर रही है, और हम बड़े थैंकफुल हैं उनके लिए। और रेयर अर्थ मैग्नेट अभी सरकार ने क्रिटिकल मिशन का भी अनाउंसमेंट जी, 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 और चाइना से भी हमारे संबंध थोड़ा सही हो रहे हैं। इसको किस तरह से देखती हैं और इंडस्ट्री किस तरह से इस प्रॉब्लम से निपटने की तैयारी है? सो रेयर अर्थ मैग्नेट्स को लेके हमारे पास लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है कि रॉ मटेरियल हमारे पास है, प्रोसेस टेक्नोलॉजी हम निगोशिएट कर रहे हैं। 18 महीने से 2 साल के अंदर हम आत्मनिर्भर हो जाएंगे।
आज की जो प्रॉब्लम है उसके लिए ओईज और ऑटो कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरर्स इकट्ठे काम कर रहे हैं कि कैसे हम ऑल्टरनेट सोल्यूशंस देखें, ऑल्टरनेट मटेरियल्स देखें, ऑल्टरनेट इंजीनियरिंग देखें, ताकि जो है सेल्स पे इम्पैक्ट ना आए। मैम आखिरी सवाल जीएसटी रेट कट को लेकर है, कितनी अच्छी बात है आपके लिए? बहुत अच्छी बात है, के लिए, कंज्यूमर के बहुत लिए? अच्छी बात है। हम बहुत खुश हैं, हम एक्साइटेड हैं, बिकॉज ये सारे प्रोसेस सिंप्लीफाई हो जाते हैं एक सिंगल रेट आने से। दूसरा, ऑफ कोर्स कॉस्ट कम होगी, डिमांड बढ़ेगी, फेस्टिव सीजन हमारा शुरू होने वाला है। सो हमें बड़ी उम्मीद है कि लॉन्ग टर्म में तो देश के लिए, हम सबके लिए अच्छा है, बट शॉर्ट टर्म में भी हम इमीडिएटली आप देखेंगे। सर जीएसटी रेट कट कितना बड़ा बूस्ट है इंडस्ट्री के लिए? जीएसटी रेट कट इंडस्ट्री के लिए ऑलमोस्ट एक वरदान की तरह है, और मोदी जी ने दिवाली जल्दी ला दी इंडस्ट्री के लिए। मैं यही कहूँगा, अगर ट्रांसमिशन जो भी कट हुआ है पूरा हो जाता है तो डिमांड 10 से 15% तक भी बढ़ सकती है। हाँ, और फैक्टर्स हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ, सर्विसेज ग्रोथ अगर थोड़ी कम होगी तो थोड़ा कम भी हो सकता है, बट ग्रोथ तो निश्चित है। तो बहुत ही पॉजिटिव स्टेप और बहुत ही सशक्त स्टेप है। लेकिन सर उसी टाइम में यूएस का टैरिफ भी लगा हुआ 50%, किस तरह से? हाँ, देखिए, आई वुड से हमारे सेक्टर के लिए तो थोड़ा सा कम, बट कई सेक्टर्स हैं जहाँ पे आप बहुत जल्दी रिप्लेस कर सकते हैं। टेक्सटाइल हो गया, अपैरल हो गया, जेम ज्वेलरी, फिशरी, जहाँ पे आप एक दिन में डिसीजन ले सकते हैं किसी और को रिप्लेस करने के लिए। ऑटो में टाइम लगता है। सेकंड, हमारा सेक्शन 232 में आता है जो कि 25% टैरिफ सब हर देश के लिए। तो अगर आप उस लिस्ट में, तो आपका 50 नहीं है, 25 है, और 25 सबके लिए, तो रिलेटिवली आप जहां थे वहीं हैं। ट्रक ट्रैक्टर पार्ट्स के लिए ज्यादा फर्क पड़ता है। इसकी वजह से लोग अनुमान लगा रहे हैं कि 0.6 से 0.8% जीडीपी ग्रोथ डाउन हो सकती है। मेरे अनुमान से ये जीएसटी रैशनलाइजेशन इसको नेगेट काफी हद तक कर सकता है। और सर इसी टाइम में यूरोपियन यूनियन से बातचीत हो रही है, उनके नेगोशिएटर यहाँ पर हैं, और आज भी कुछ देर बाद यहाँ पे यूएस ट्रेड कमिश्नर भी होंगे। किस तरह से आप इस इंडस्ट्री की ग्रोथ के लिए यूरोप एफटीए देखते हैं? देखिए, यूरोपियन एफटीए इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर आप ऑटो सेक्टर के हिसाब से देखें तो यूरोपियन मार्केट यूएस मार्केट से थोड़ा सा कम है, बट बहुत बड़ा साइज का मार्केट है, और वैल्यू के हिसाब से काफी साइजेबल मार्केट है। तो इंडियन ऑटो कंपोनेंट वालों के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और ये मिस नहीं करनी चाहिए। और ईयू एफटीए अगर साइन हो जाता है तो सबको इसमें हर प्रयत्न करना चाहिए कि हम कितने से ज्यादा अपना एक्सपोर्ट्स यूरोप को बढ़ाएं। यूएस में भी मेरी उम्मीद, शायद उम्मीद ही आप कह सकते हैं, है कि 2-3 महीने में कोई ट्रेड एग्रीमेंट होगा और ये टैरिफ रेट जो है ये रैशनलाइज होगा। और सर आखिरी सवाल, रेयर अर्थ मैग्नेट को लेके है, जी, कितना बड़ा कंसर्न है आपका? हम पढ़ते रहते हैं आपका। जी, कंसर्न तो है, बिकॉज हेवी रेयर अर्थ मैग्नेट नहीं है, मगर अभी जैसे मैं अगस्त देखूं तो हमारा 95% प्रोडक्शन लेवल तक पहुंच गए हैं, बिकॉज हम लोग हेवी रेयर अर्थ फ्री मैग्नेट यूज करने लगे। तो सबसे बेस्ट सोल्यूशन नहीं है, कॉस्ट पे थोड़ा ट्रेड ऑफ है, परफॉर्मेंस पे थोड़ा सा ट्रेड ऑफ है, बट 100 to 0 वाली सिचुएशन नहीं है। बट हाँ, अगर आप भारी मोटर बनाते हैं, बड़ी मोटर्स बनाते हैं हाई पावर की, उन लोगों के लिए ज्यादा प्रॉब्लम है। 2 व्हीलर 3 व्हीलर के लिए उतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है जितना कार और बस और ट्रक के लिए तो ऑलमोस्ट असंभव हो जाता है। तो आपकी कंपनी के लिए कितना इम्पैक्टफुल है ये रेयर? मैंने जैसे बोला 95% तक प्रोडक्शन हमारा वापस आ चुका है। वैसे भी ये 8% है हमारी रेवेन्यू का, तो मतलब नेगेटिव इम्पैक्ट पिछले क्वार्टर में था 3 हफ्ते का प्रोडक्शन लॉस, क्योंकि अगर आप नई मोटर बनाते हैं, फिर से टेस्टिंग, वैलिडेशन, उस मोटर को फिर यूज, तो उसमें जो समय और अपॉर्चुनिटी लॉस हुआ वो तो लॉस हो चुका है। बट अब ये प्रॉब्लम थोड़ी कम है, बट ये प्रॉब्लम का सलूशन बहुत ही आवश्यक है। भारत सरकार को चाइना से बात करके ये एक्सपोर्ट कंट्रोल हटवाना चाहिए, बिकॉज हम भी आगे नहीं बढ़ पा रहे, और ये जो सोल्यूशन है ये भी बेस्ट सोल्यूशन नहीं है। तो हमारे कस्टमर को थोड़ा पेन है, रेंज कम हो रही है, उनके लिए भी दिक्कत है, हमारे लिए भी दिक्कत, तो दिक्कत सॉल्व हो जाएगी, अच्छा है। अभी काम चल रहा है, बट काम चलना सबसे अच्छी सिचुएशन नहीं होती है, काम धड़ल्ले से चले, ऐसी सिचुएशन में वापस आए, ये अच्छा रहेगा।